السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ کے لیے 5واں ٹیسٹ پیپر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج اس پیپر کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم جتنے بھی سوال آپ کو بتائیں گے اس کے 4 آپشن لے کر آئے ہیں اور وہ چاروں آپشن آپ کو بتائیں گے، لیکن اس کے جواب ہم نہیں بتائیں گے اور نہ ہی اس کی آنسر کی آپ کو بھیجی جائے گی، کیونکہ آپ اب یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایگزام کے روم میں ہیں، آپ کے پاس یہ ایگزام کا پیپر سامنے آ گیا ہے۔ اب آپ کو اس کو حل کرنا ہے، اور آپ اس کو کس طرح حل کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سارا پیپر حل کر لیں گے۔ اگر کہیں دشواری آتی ہے کسی سوال پہ تو آپ مجھے ٹیلی فون پہ یا واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اب جتنے بھی میں ٹیسٹ پیپر آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ کا ٹیسٹ لوں گا، اس کا کوئی بھی جواب نہیں بتاؤں گا، صرف آپ کو اپنی قابلیت سے اس کے جواب ڈھونڈنے ہوں گے۔ ایک بات اور کہ ہمارے کچھ ناظرین ہیں، ان کی شکایت ہے کہ صاحب آپ بہت چھوٹے چھوٹے سوالات دیتے ہیں، یہ نیٹ کے لیے نہیں ہوتے، آپ ذرا بڑے بڑے کیا کیجئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کی فرمائش کو مد نظر رکھ کر اس ویڈیو میں کچھ سوالات کا خیال بھی رکھا ہے۔ امید ہے ان بھائی جان کی یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ بھائی جان، یہ ویڈیو بڑی مشکل سے تیار ہوتے ہیں اور یہ خدمت خلق کا کام کر رہا ہوں، اور اگر کوئی بھی اس کام کو کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے لیے بڑی مشکل کا کام ہوگا، لیکن میں نے جب یہ قدم اٹھایا ہے تو انشاءاللہ آخر بھی کروں گا۔ آپ کی دعائیں میرے ساتھ رہیں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 5ویں ٹیسٹ پیپر کا پہلا سوال: تم میرے پاس ہوتے گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ شعر ہے، تو اس شعر کے بدلے اپنا پورا دیوان دینے کی بات کس شاعر سے منسوب ہے؟ اے ذوق، بی غالب، سی شیفتہ، ڈی بہادر شاہ ظفر۔ دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ذیل میں سے کون سی ترتیب درست ہے؟ اے سراپا، چہرہ، رخصت، آمد، بی آمد، رخصت، چہرہ، سراپا، سی چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، ڈی رخصت، آمد، چہرہ، سراپا۔ ان چاروں میں سے ایک پہ آپ کو نشان لگانا ہے۔ اب آئیے تیسرے سوال کی طرف۔ نظم سید کی لوح تربت کس مجموعے میں شامل ہے؟ اے بانگ درا، بی ضرب کلیم، سی بال جبریل، ڈی ارمغان حجاز۔ چوتھا سوال: میر من سے قبل قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ اے عطا حسین خاں تحسین، بی شاہ عالم ثانی آفتاب، سی فضل علی خاں فضلی، ڈی رجب علی بیگ سرور۔ لیجئے 5واں سوال: غالب کو حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف کس نے کہا ہے؟ اے عبد الرحمن بجنوری، بی الطاف حسین حالی، سی شبلی نعمانی، یا ڈی نیاز فتح پوری۔ چھٹا سوال: ذیل میں سے کس شاعر نے 2 تخلص اختیار کیے ہیں؟ اے مومن، بی فانی بدایونی، سی غالب، ڈی درد۔ 7واں سوال: غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ قول کس کا ہے؟ اے آل احمد سرور، بی رشید احمد صدیقی، سی مجنوں گورکھپوری، یا ڈی کلیم الدین احمد۔ 8واں سوال: نامدیو مالی کا خاکہ کس نے تحریر کیا؟ اے رشید احمد صدیقی، بی مولوی عبدالحق، سی عبد الماجد دریابادی، یا ڈی فرت اللہ بیگ۔ 9واں سوال: بدھیا کون تھی؟ اے گھیسو کی بہن، بی مادھو کی بیوی، سی زمیندار کی بہو، ڈی مہاجن کی بیٹی۔
10वां सवाल फिर से सुन लीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज के किस मुसन्निफ़ ने गुल बकावली के क़िस्से को उर्दू नस्र में लिखा? ए काज़िम अली जवान, बी बहादुर अली हुसैनी और सी लल्लू लालजी कवि या डी निहालचंद लाहौरी? तो इसका जवाब हम बता देते हैं। ये शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा कि गुल बकावली जो है हिंदुस्तान की लोक कथाओं में से एक किस्सा गुल बकावली बहुत मशहूर है। यानी गुल बकावली का मौजू क्या है? जवाब देंगे हिंदुस्तान की लोक कथा। और इसको निहालचंद लाहौरी ने इसका फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा करा। पहले गुल बकावली को इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने फ़ारसी में लिखा था, लेकिन निहालचंद लाहौरी ने इसे फ़ारसी से उर्दू में मुंतकिल किया और इसका नाम मज़हब-ए-इश्क़ रखा। इसी कहानी को आगे चलकर पंडित दयाशंकर नसीम ने मसनवी गुलज़ार नसीम के नाम से पेश किया। ये बात याद रखने वाली है प्यारे बहनों और भाइयों, ये कोई नहीं बताएगा और मैंने इसका जवाब तफसील से आपको दे दिया है। और मज़हब-ए-इश्क़ की ज़बान नहायत सादा और सलीस ज़बान दोनों और शीरी ज़बान थी इसकी, जो निहालचंद लाहौरी ने फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा की थी। अब आइए 11वें सवाल की तरफ। मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? ए शौकत सब्ज़वारी, बी महमूद शीरानी, सी मसूद हुसैन ख़ान, डी सैयद सुलेमान नदवी। 12वां, इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज का ताल्लुक़ किसका नहीं है? ए मीर शेर अली अफसोस, बी मीर बहादुर अली हुसैनी, सी रजब अली बेग सुरूर, डी मीर अमन दहलवी। 13वां सवाल, इनमें नौरस किसकी तसनीफ़ है? ए अली आदिल शाह, बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सी इब्राहिम आदिल शाह, डी मुल्ला वजी। 14वां सवाल, उर्दू की पैदाइश के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया क्या था? ए ब्रिज भाषा से निकली, बी खड़ी बोली से निकली, सी हिंदी से निकली या डी पंजाबी से निकली। 15वां सवाल आपके सामने पेश खिदमत है। खूजी किस किस्से का किरदार है? ए फिरदौस बरी, बी तौबतुल नसूह, सी फसाना आज़ाद या डी उमराव जान अदा। 16वां सवाल, नावल आखिरी शब के हमसफ़र का मुसन्निफ़ कौन है? ए नज़र सज्जाद हैदर, बी सज्जाद हैदर यलदरम या सी कुर्रतुल ऐन हैदर या डी काजी अब्दुल सत्तार। तो इसका जवाब हम बता देते हैं। वैसे आपको मालूम होगा ये हैं कुर्रतुल ऐन हैदर का ये नावल है आखिरी शब के हमसफ़र, जो 1971 में शाये हुआ। और आपको मालूम है कि कुर्रतुल ऐन हैदर ने जितने भी नावल लिखे वो शौरा के किसी भी मिसरे या शेर से मंसूब किए। ये भी उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ के इस मिसरे से शुरू किया कि आखिरी शब के हम सफ़र फैज़ ना जाने क्या हुआ। ये फैज़ का मिसरा है। तो दोस्तों, हमने इसका आपको जवाब बता दिया। अब आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अफसाना फ़ोटोग्राफ़र का मुसन्निफ़ कौन है? ए ख्वाजा अहमद अब्बास, बी ग़ुलाम अब्बास, सी जीलानी बानो, डी कुर्रतुल ऐन हैदर। 18वां सवाल, मवाज़ना अनीस व दबीर किस किस्म की तनक़ीद का नमूना है? ए जदीद तनक़ीद, बी मार्कसी तनक़ीद, सी तक़ाबली तनक़ीद, डी नफ्सियाती तनक़ीद। 19वां, ज़ेल में से कौन सी किताब उर्दू की नसरी दास्तान नहीं है? ए तिलिस्म होश रबा, बी शरीफज़ादा, सी फसाना अजायब, डी बाग़ो बहार। हयात जावेद में किसके सवाने हालात बयान हुए हैं? ए गालिब के, बी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के, सी हाफिज़ के या डी सर सैयद अहमद ख़ां के। 21वां सवाल, गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन किसने करार दिया है? ए कलीमुद्दीन अहमद, बी रशीद अहमद सिद्दीकी, सी आले अहमद सुरूर, डी एहतिशाम हुसैन। 22वां सवाल, प्रेमचंद की किस किताब पर अंग्रेज़ी सरकार ने पाबंदी लगा दी थी? जो कई बार हम पढ़ा चुके हैं आपको और आपको याद भी होगा। ए निर्मला,
बी मैदान अमल, सी सोज़ वतन और डी गबन। 23वां सवाल, शोर सैनी प्राकृत का इलाका कौन सा था? ए मथुरा, बी बिहार, सी बंगाल और डी उड़ीसा। लीजिए 24वां सवाल पेश खिदमत है। उर्दू के किस शायर को शायर इनकलाब कहा जाता है? ए इकबाल, बी जोश मलियाबादी, सी अख्तर शीरानी या डी नून मीम राशिद। 25वां सवाल, उर्दू पंजाब में पैदा हुई ये किसका नज़रिया है? ए मसूद हुसैन ख़ां, बी अमीर खुसरो, सी मीर अमन या डी महमूद शीरानी। अब आइए 26वें सवाल की तरफ चलते हैं। कलीम किस नावल का किरदार है? ए शरीफज़ादा, बी मुरातुल उरूज़, सी फिरदौस बरी, डी तौबतुल नसूह। अब आइए 27वें पर चलते हैं। सुर्ख सवेरा किसका मजमूआ कलाम है? ए मखदूम मोइनुद्दीन, बी फैज़ अहमद फैज़, सी अख्तर अंसारी या डी सज्जाद ज़हीर। मदन किस अफसाने का किरदार है? ए अपने दुख मुझे दे दो, बी कफन, सी आखिरी आदमी, डी आनंदी। 29वां सवाल, मंदरजा झैल दास्तानों में से किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए कि मंदरजा झैल दास्तानों में से किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? ए रानी केतकी की कहानी, बी किस्सा हातम ताई या सी बागो बहार या डी दास्ताने अमीर हमज़ा। 30वां सवाल, बदर मुनीर किस मसनवी का अहम किरदार है? कई बार बता चुके हैं आपको। ए ज़हर इश्क, बी गुलजार नसीम, सी कुतुब मुश्तरी, डी सहरुल बयान। अब आइए 31वें सवाल की तरफ। इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है? ए शाद, बी सिराज, सी नासिक और या डी ख्वाजा मीर दर्द। 32वां सवाल, गौहर मिर्ज़ा किस नावल का अहम किरदार है? ए फिरदौस बरी, बी तौबतुल नसूह, सी उमराव जान अदा, डी टेढ़ी लकीर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 33 सवाल पर एक वीडियो जो आज हमने 5वां वीडियो आपके लिए अपलोड किया है। और उम्मीद है ये आपके इम्तहान में बेहद और वेरी इम्पोर्टेंट सवाल हैं। ज़रूर ही इंशाअल्लाह इनमें से बहुत आपको मदद मिलेगी और इसको सुनकर इसको देखकर अपनी राय से हमें नवाजिए। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो भी तैयार करें। इसके साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद खुर्शीद ख़ां को इजाज़त दीजिए। हाँ, अगर कोई बात पूछनी है, कोई सवाल का जवाब पूछना है तो मेरा नंबर है 8477965321। इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या फ़ोन भी कर सकते हैं। अब जो भी वीडियो होगी एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि कोई भी जवाब मैं नहीं बताऊँगा। अगर मुश्किल कोई जवाब होगा तो मैं उसको तफसील के साथ बता दूँगा, वरना इनके जवाब आपको ही तलाश करने होंगे। आप ये समझ लीजिएगा कि हम इम्तहान गाह में बैठे हुए हैं और अपना पेपर हल कर रहे हैं। जब कोई पेपर अपना हल करता है तो वो किसी की मदद के लिए किसी की ज़रूरत पेश नहीं आती है, वो सिर्फ खुद ही पेपर करता है। आप ये समझ लीजिए कि आप पेपर कर रहे हैं और पेपर आपके सामने रखा हुआ है और जवाब इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।